আপনাদের সকলকে নিউজ 10 বাংলার পর্দায় স্বাগত। আপনাদের সঙ্গে আমি সুমনা। আপনারা এখন দেখছেন নিউজ 10 বাংলা। আসুন দেখে নেওয়া যাক এখনকার বিশেষ খবর। আসানসোল শহরকে আবারও বঞ্চিত করার অভিযোগ তুলেন আসানসোল পৌর নিগমের প্রাক্তন মেয়র জিতেন্দ্র তেওয়ারি। আজকে কুলটি বিধানসভার বরাকর অতি প্রাচীন মন্দির বরাকর সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরে পরিদর্শন করলেন কুলটির বিধায়ক ডাক্তার অজয় পোদ্দারের সাথে আসানসোল পৌর নিগমের প্রাক্তন মেয়র তথা বিজেপি নেতা জিতেন্দ্র তেওয়ারি। এই পরিদর্শনের মাধ্যমে প্রাক্তন মেয়র জিতেন্দ্র তেওয়ারি বলেন, বরাকর সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের জন্য 1 কোটি টাকা দেওয়ার জন্য অনুমোদন করা হয়েছিল আসানসোল পৌর নিগমের মেয়র থাকাকালীন, কিন্তু সেই সময় রাজ্য সরকার আসানসোলকে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ থেকে বঞ্চিত করার জন্য উন্নয়নের কাজে বরাদ্দ টাকা আটকে দেওয়ার অভিযোগ তুলে তিনি মেয়রের পদত্যাগ করেছিলেন। কিন্তু বরাকর সিদ্ধেশ্বরী মন্দির পরিদর্শনে এসে আবারও আসানসোল শহরকে বঞ্চনার অভিযোগ তুললেন প্রাক্তন মেয়র জিতেন্দ্র তেওয়ারি। তবে সীতারাম বাবার মন্দিরের সেবায়ত হরেকৃষ্ণ বাবা বলেন যে মন্ত্রী ও বিধায়ক মন্দিরের উন্নয়ন করার জন্য আসে, কিন্তু সেই আশ্বাসে থাকে, কিন্তু কোনো উন্নয়ন হয়নি মন্দিরে। আসুন দেখে নেওয়া যাক সেই চিত্র নিউজ 10 বাংলার পর্দায়। পশ্চিম বর্ধমান থেকে রামকৃষ্ণ চ্যাটার্জির রিপোর্ট, নিউজ 10 বাংলা। পরবর্তী খবরের জন্য চোখ রাখুন নিউজ 10 বাংলার পর্দায়। করেছিলাম আর এখনও করি, কিন্তু কোনো আশার কোনো ফল পাওয়া যায় না। আমরা এর আগে যারা এমএলএ ছিল, এসেছিল, প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, কোনো রকম কিছু কাজ করতে পারেনি। বর্তমানে আশাইটা শুধু আশাই থেকে যাচ্ছে, কিন্তু আশাটা কাজে হবে তবে না। এমএলএ না মেয়র? মেয়র, যিনি মেয়র জিতেন্দ্রনাথ তেওয়ারি, ইনি আগে এসেছিলেন এখানে, আমার এখানে এসে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন 1 কোটি টাকা আপনার এখানে 1 কোটি টাকা শিব মন্দিরের কাজ হবে। যখন আমি যখন গেলাম ওনার অফিসে, নিজে গেলাম, গিয়ে ওনাকে বললাম যে আপনি বলে এলেন কাজ করব, তো কাজটা করুন। বললো আমরা হেরে গেছি, আমরা করব না। তখন লোকসভা ইলেকশানে হয়েছে, লোকসভা ইলেকশনের পরে আমি গিয়েছিলাম। বললো আপনি বললেন যে করব, বললো না আমরা হেরে গেছি, ওই একটা মার্কস লাইট দিয়েছি, এই পর্যন্ত, আমরা কিছু করব না। আর অথচ পেপারে সব জায়গায় দিয়ে দিয়েছিল 1 কোটি টাকার কাজ করব। ভক্তরা আমাকে জিজ্ঞেস করে, কি বাবা আপনাকে যে বললো 1 কোটি টাকার কাজ হবে, কই কিছু হলো? কিছুই না। একটা ইটা, 1 পিস ইট একটা দেখায় দিন যে কোনো ইয়ে করে গেছে। একটা বাথরুম পায়খানা যেটা কমন জিনিস মানুষের দরকার, সেটাও পর্যন্ত কেউ করেনি। আজকের বাবুল সুপ্রিয় এত দিনের এমপি আছে, একবার এসে মনে করেছে যে 2500 বছরের মন্দির আমার দেখার দরকার, আমার এলাকার মধ্যে পড়েছে? কেউ দেখেনি। সব নিজের ভোট নিয়েই ব্যস্ত আছে, আসে যায়, কিছু বলার নেই এর মধ্যে। আমি কোনো রাজনীতির মধ্যে যাব না। একটা এমপি এত প্রাচীন জিনিস, নতুন করে পর্যটন কেন্দ্র গড়ার দরকার নেই, তৈরি করা আছে। শুধু একটু রাস্তা ভালো করে দেবে, একটু প্রচারে এনে দেবে, তাতেই কত মানুষের জীবন জীবিকা নির্বাহ হয়নি। দেখুন বেনারস গড়ে উঠেছে আজ বাবা বিশ্বনাথকে নিয়ে, বৈদ্যনাথ গড়ে উঠেছে বাবা শিবকে নিয়ে, তিরুপতি বলে সব জায়গা, ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক দেশ, প্রত্যেকটা তীর্থ গড়ে উঠেছে এক একটা মঠ মন্দির নিয়ে। আমাদের বরাকরে আছে কি এই সিদ্ধেশ্বরী মন্দির? এটাকে যদি সুন্দর করে জাগিয়ে তোলে তো মানুষের, কত মানুষের রুজি রোজগারের মধ্যে থেকে হয়ে যায়, জীবিকা নির্বাহ হয়ে যায়, কত মানুষ কাজ পায়, সে নিয়ে কেউ ভাবে না। আজকে তুমি আবার আসছেন, কি আশা করছেন? শুনেছি, আমার কাছে কেউ বলেনি, আপনারাই বললেন যে আসছে। এই আপনারা বললেন আসতে, দেখি কি প্রতিশ্রুতি দেয়, কতটুকু রাখবে সেটাও আমি তো বলতে পারবো না আগে থেকে। আবার কি এই পুরনো কথা তুলে ধরবেন ওনার কাছে? দেখুন পুরনো কথা তুলে ধরা না ধরা সবাই জানে এই জিনিসটা, আমাকে নতুন করে বলবার কিছু নেই। সবাই আসে, ফিতা কাটে, চলে যায়। আপনি কি আশা রাখছেন? আমি কোনো আশাই নেই। এত বছরে যখন আশা নিরাশা হয়ে আছে, আর আশা করবার কি আছে? যা মন্দিরে যা দেখছে না, ভক্তরা মিলে গড়ে তুলেছে, এখানকার লোকাল মানুষ, তারাই যতটুকু পেরেছে করে এইটুকু করেছে নিজেরা। একটা 1 পিস একটা বাথরুম পায়খানা সাধারণ কমন জিনিস, সেটুকু পর্যন্ত কেউ করবার মনে করেনি। এখানকার রাজ্য সরকারের প্রতি কিছু আশা রেখেছেন? না, আমি ওসবের কোনো সরকারের প্রতি কেন বলতে যাও, গিয়ে ঝামেলায় জড়াতে যাবো, মাথা খারাপ হয়ে। আমি কাউকে কিছু বলবো না, আমার কাছে যেটা ঘটেছে আমি সেটা বললাম। শিব মন্দিরে জল জমলে গেলে আপনি দেখবেন জলের মধ্যে একটু বৃষ্টি হলে শিব জলের তলায় চলে যাচ্ছে, কারের কোনো কিছু না, শুধু আসে বলে করব চলে যায়, আর ফিরে আসে না। যে একবার বলে আর চলে যায় আর ফিরেও আসে না, যে কাজটা বলে এলাম ঠাকুরের সামনে মিথ্যা কথা বলে যাই কি করে? বাবা পরিচয়টা একটু দিন। আমার নাম হরেকৃষ্ণ বাবা, আমি এই মন্দিরের সেবায়িত। আমি সীতারাম বাবা, কাশী বাবা, এখন 3 নম্বরে আমি আছি। এই মন্দিরটা আলাদা, দুটো মন্দিরে গুলিয়ে দেবে না। সিদ্ধেশ্বরী মন্দির আলাদা, আর এটা সীতারাম বাবার প্রতিষ্ঠিত গৌরাঙ্গ মন্দির, দুটো পার্ট আলাদা। ওর সেবায়িত আলাদা, এর সেবায়িত আলাদা।
भैया रुकिएगा तो অন্য পার্টিতে শুনে এসেছি কাজগুলো বন্ধ নেই সেটা দাদা একবার প্রেশার দিই आसनसोल शहर को वंचित किया जा रहा है। आसनसोल शहर के डेवलपमेंट के लिए जो पैसा चाहिए वो पैसा राज्य सरकार नहीं दे रही है। आपको मालूम होगा कि मैं यहाँ पर आया था और यहाँ के जो 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 यहाँ पर जिनके देखभाल करते हैं, जो यहाँ के पुरोहित थे, उन्होंने बहुत सा काम यहाँ पर कहा था कि ये काम की ज़रूरत है। इमीडिएटली हम लोगों ने एक हाई मास्ट लाइट यहाँ लगाया था और 1 करोड़ रुपए का एक DPR हम लोगों ने बनाकर राज्य सरकार के पास भेजा था और सही में ज़रूरत है। आप देखिए सही में ज़रूरत है इसकी। इस तरह केवल यही नहीं, पूरे आसनसोल में बहुत सा जगह का बहुत सा DPR बनाकर राज्य सरकार के पास भेजा गया। लेकिन मैं देखता था कि कलकत्ता को जब सुंदर बनाने की बात आती है तो सब कुछ होता है, लेकिन आसनसोल शहर उल्टी बढ़ाकर इस इलाके में यदि कुछ काम करना हो तो कलकत्ता से पैसा देने में लोगों को बहुत तकलीफ होती है। तो मैंने बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी मेरा बात जब कोई नहीं सुना तो मैंने कहा इस कुर्सी पर बैठ कर रहने का कोई मतलब नहीं है, मैंने ये कुर्सी छोड़ दी। और आज भी इतने आज करीब 6-8 महीना हो गया, अभी भी जो लोग नगर निगम में बैठे हुए हैं, मैंने कुछ दिन पहले ही कहा कि आसनसोल के साथ आसनसोल को वंचित किया जा रहा है। बहुत से लोग चिल्लाने लगे, आप कौन होते हैं बोलने वाले, आसनसोल को वंचित नहीं किया जा रहा है, आसनसोल को बहुत सहयोग मिल रहा है सरकार का। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आसनसोल को यदि राज्य सरकार का सहयोग मिल रहा है, यदि आपको पैसा मिल रहा है, तब 1 करोड़ रुपया जो मैंने सैंक्शन किया था उसका टेंडर कीजिए, जल्दी से जल्दी उसका टेंडर कीजिए। मैं जानता हूँ आप टेंडर नहीं कर सकते क्योंकि वो पैसा आपके पास नहीं है, क्योंकि राज्य सरकार वो पैसा नहीं दे रही है। हम लोग आज यहाँ पर आए हैं, यहाँ की जनता ने डॉक्टर साहब को हमारा विधायक बनाकर यहाँ से भेजा है। केंद्र सरकार के जो डिपार्टमेंट है वहाँ से भी वो चिट्ठी कर रहे हैं जिससे कि एक प्रक्रिया के माध्यम से इसको कुछ किया जाए, लेकिन मूल जिम्मेदारी यहाँ की राज्य सरकार की है। यहाँ ड्रेन जाम है, बड़ा ड्रेन बनाना पड़ेगा, वो क्या केंद्र सरकार आके यहाँ नाली ड्रेन पानी लाइट ये भी यदि केंद्र सरकार को आगे बनाना पड़े तो कॉर्पोरेशन किस लिए है, तो राज्य सरकार किस लिए है। लेकिन अब ये प्रश्न पूछेंगे तो बोले आप क्या किए। अरे भाई हम जब कुर्सी में थे तो ऐसा थोड़े है कि हम कोर्ट में वकालत करेंगे वहाँ से पैसा कमा के काम करेंगे, ऐसा तो नहीं है। जो भी मेयर की कुर्सी में रहता है, सरकार जो पैसा देती है या लोग जो टैक्स देते हैं, इसी से काम करना पड़ता है। तो जब टैक्स तो हम लोगों ने लिया, आप कितना टैक्स लेंगे, लेकिन सरकार से जब पैसा मांगते गए तो उनको ये सब फालतू चीज लगा। पश्चिम बंगाल की सरकार को म्युनिसिपल अफेयर डिपार्टमेंट को उस समय जो मंत्री थे उनको ये सब काम फालतू लगता था, लेकिन ये सब काम फालतू नहीं है, ये जरूरी है। ये आज आकर आपको पता चल रहा है। 7 दिन की बारिश में क्या हाल हुआ आप लोगों ने देखा। हम लोग फिर डिमांड करते हैं कि आसनसोल शहर को वंचित करने का जो प्रयास किया जा रहा है कलकत्ता के द्वारा, इसके खिलाफ सारे लोगों को, कुल्टी, जमुरिया, रानीगंज, आसनसोल साउथ, आसनसोल नॉर्थ, सारे लोगों को इकट्ठा होकर ये लड़ाई लड़नी होगी कि जब इतना रेवेन्यू यहाँ से जाता है, इतना यहाँ पर पब्लिक सेक्टर यूनिट है, राज्य सरकार की बहुत से यूनिट है, यहाँ पर इतना रेवेन्यू आसनसोल से जाता है कलकत्ता को। आप आसनसोल से केवल पैसा लेंगे और आसनसोल को जब देने का समय आएगा तो आप कंजूसी करेंगे और बोलेंगे कि कुर्सी में रहना है तो चुपचाप रहो। ऐसा नहीं हो सकता। मेरे अंदर ये हिम्मत थी कि मैंने मेयर की कुर्सी छोड़ दी कि मैं आसनसोल के लिए यदि काम नहीं कर सकता तो इस कुर्सी पे बैठने का कोई मतलब नहीं है। आज जो लोग बैठे हुए हैं उनसे मैं कहता हूं, मैं जानता हूं कि वो लोग राज्य सरकार के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ सकते, क्योंकि उस कुर्सी पे बैठना तो आप नहीं लड़ सकते। तो कम से कम हम लोग को लड़ने दीजिए। जब हम लोग लड़ने जा रहे तो फिर भी आप लोग चिल्लाते हैं यार क्यों लड़ाई कर रहे हैं, बहुत सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है तो ये खराब क्यों है। हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों ने 1 करोड़ रुपया जो यहाँ के रिहेबिलिटेशन के लिए या जो भी काम है जो सैंक्शन किया था, केवल एक हाई मास्ट लाइट लगा है। बाकी जो पैसा DPR राज्य सरकार के पास है, जल्दी से जल्दी वो DPR सैंक्शन करके पैसा कॉर्पोरेशन को भेजे जिससे कि वो काम शुरू हो सके। और हमारे डॉक्टर साहब भी विधायक के रूप में वो भी राज्य सरकार से भी डिमांड करते हैं और साथ साथ केंद्रीय जो मंत्रालय है वहाँ भी उन्होंने ये चिट्ठी किया है कि उनका जो डिपार्टमेंट है वो भी आकर इसे देखे। वो बड़ी परियोजना होगी, लेकिन इमीडिएटली जो काम है उसके लिए तो केंद्र सरकार नहीं आएगी, उसके लिए तो जो राज्य सरकार है उनको ही करना पड़ेगा। तो मूल जो बात है कि आसनसोल शहर को वंचित करने का जो सिलसिला प्रारंभ हुआ था, जिसके खिलाफ मैंने आवाज़ उठाई थी, वो आज भी जारी है। और यही सिलसिला यदि जारी रहा तो आने वाले दिनों में आसनसोल की लाखों लाख जनता को लेकर, इन टर्म्स ऑफ एरिया आसनसोल बंगाल का सबसे बड़ा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। कलकत्ता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का एरिया है 202 स्क्वायर किलोमीटर और आसनसोल कॉर्पोरेशन का एरिया है 362 स्क्वायर किलोमीटर। तो जब हम एरिया में आसनसोल कलकत्ता से भी बड़े हैं, तो जब पैसा देने का मामला आता है तो जो कलकत्ता को जो देते हैं उसका 10% भी यहाँ नहीं देते। हम भीख मांगते हैं क्या? यहाँ से रेवेन्यू ले जाते हैं, यहाँ से पैसा कलेक्शन करके ले जाते हैं और जब देने का समय आता है तो कंजूसी करते हैं।
और चूंकि जो कुर्सी पर बैठेगा आप चुप रखेंगे उसको, भाई कुर्सी में बैठना है तो चुप रहो, नहीं बोलोगे, ऐसा नहीं चल सकता। जनता जागरूक हो रही है और आने वाले दिनों में बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए हम तैयार हैं। भैया स्वास्थ्य केंद्र को लेकर के अपने स्वास्थ्य केंद्र मैंने कहा, तो आप देखिए ना डिसरगढ़ में वहाँ बोर ऑफिस बनाया जा रहा है, 7 स्वास्थ्य केंद्र तैयार है। 2000 दिसंबर तक काम कंप्लीट करने का काम था, 18, 19, 20 तो आते मैंने पूरा काम कंप्लीट कर दिया। उसको जब चालू करने का मामला आया, उसके लिए डॉक्टर देने का मामला आया, टेक्नीशियन रहेंगे, सब कुछ रहेगा, इतना करोड़ों केंद्र सरकार ने ये के पैसे से मैंने बनाया। अब जब उसमें डॉक्टर देने की बात है, बेड देने की बात है, तब चुपचाप है, और जब बोलने जाइए तो बोलते हैं आप क्यों नहीं किए। अरे भाई हम तो बिल्डिंग बनाए, हम जब तक थे तब तक जो मेरा काम था वो मैंने किया, अब बाकी जो काम है वो करो, और नहीं कर सकते तो जनता से माफी मांगो। बरगलाओ मत जनता को, बरगलाओ खाली अपने कुर्सी पर बैठे रहने के लिए कलकत्ता जो बोलता है हाँ में हाँ मत मिलाओ। जितेंद्र तिवारी का क्या गलती है? यही गलती है कि कलकत्ता की हाँ में हाँ मैंने नहीं मिलाया। मुझे जब लगा कि कलकत्ता आसनसोल के साथ अन्याय कर रहा है, मैंने अपनी आवाज उठाई। आपके आज जो लोग हैं उनके अंदर हिम्मत है तो आवाज उठाएं, और नहीं तो कम से कम हम लोग को आवाज उठाने दे, चुपचाप बैठे। भैया और एक काम अपने ऊपर में लिए थे, आसनसोल बाजार में 14 तल्ला पार्किंग का वो तो काम चल रहा है। तो आप मैंने जब तक आप देखे होंगे कि 2 फ्लोर बन के काम बंद है, ये किसकी जिम्मेदारी है? जो लोग आज बैठे हुए 6 महीना हो गया दूसरे काम में सारा व्यस्त है, खोज के कैसे जितेंद्र तिवारी को गाली दे सकते हैं इसमें व्यस्त है। वो देते रहिए, मेरा चमड़ा मोटा हो गया गाली सुनते, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हम देखते हैं जब लोग गाली देते हैं तो हम देखते हैं जो आदमी गाली दे रहा है वो खुद कैसा है। कोई अच्छा आदमी यदि हमको गाली दे तो सोचना पड़ता है कि बढ़िया आदमी है, गाली दे रहा, हमसे कुछ गलती हो। और जिसका अपना वैल्यू कुछ नहीं है वो जब मुझे गाली देता है तो हम उसको इग्नोर करते हैं। हमको जितना गाली देना है दो, लेकिन आसनसोल को भी प्यार करो भाई। आसनसोल को प्यार नहीं करोगे और हमको गाली दोगे तो वो गाली बर्दाश्त नहीं करेंगे।